मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं सबा अंजुम आशी नोबल न्यूज़ चैनल में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। बरमौखा यौम जमहूरिया ज़ेरे एहतमाम बज़्म गालिब मैसूर रोड बैंगलोर बाइश्तराक कर्नाटक उर्दू अकेडमी एक कुल हिंद मुशायरा बैंगलोर में मुनक़्क़िद हुआ, जिसकी सदारत डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी साबिक़ चेयरमैन कर्नाटक उर्दू अकेडमी ने की और मुमताज सहाफ़ी शरफुद्दीन सैयद अशरफी बतौर मेहमान खुसूसी रहे और अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि उर्दू का मुस्तकबिल निहायत ताबनाक है। हालत हाजिरा पर गुफ्तगू करते हुए आपने कहा कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, उर्दू हमारी जान है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमें खुद करनी है। डॉक्टर हकीम मोहम्मद फारूक आजम हब्बान खासिमी ने खुतबा इस्तकबालिया पेश करते हुए कहा कि मुशायरा उर्दू की तहजीब और तमद्दुन को नई नस्ल में मुंतकिल करने का जीना है। सदर मुशायरा डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी ने अपना कलाम से नवाजा और अपने ख्यालात का इजहार भी किया और इमरान असलम बनारसी ने मुशायरे की निजामत की, जिसकी एक रिपोर्ट पेश है। أعوذ بالله من الشيطان मौलवी मोहम्मद इरशाद हब्बानी साहब से तिलावत कलाम रब्बानी समाप्त कर रहे थे। आइए, नात का मरहला है। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात का नजराना एक ऐसे शायर से मैं करवाने जा रहा हूँ। 4 मिसरे समाप्त करें नात के। देखिए, शायर कहता है, मेरे सुखन की रिफ़तों का हक अदा हो चांद पर, मेरे सुखन की रिफ़तों का हक अदा हो चांद पर, खुदा करे कि नात का मुशायरा हो चांद पर। बहुत से शोरा ने नज़में भी कही हैं, गज़लें भी कही हैं, लेकिन चंदपटन से तशरीफ लाए हुए हसन अली खान हसन धीरे धीरे रदीफ पर ताज़ा ताज़ा नात कहे हैं। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आए बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नज़र आया बाबे हरम धीरे धीरे, नजर आया बाबे हरम धीरे धीरे, तसव्वुर हुआ मोहतरम धीरे धीरे, नजर आया बाबे हरम धीरे धीरे। हम पेश कर रहा हूं। नजर को थी जल्दी नजारों को जल्दी, सहारों की थी बेसहारों को जल्दी, जमीनों फलक चांद तारों को जल्दी, गरज थी सभी बेकरारों को जल्दी, मगर चल रहा था कलम धीरे और पढ़े लिखे आप दीन इस्लाम के बहुत सारे वाक़या से वाकिफ हैं। पेश कर रहा हूँ मक्के के हालात पर एक नजर सितम आम था, आम थी बेहयाई,
ستم عام تھا، عام تھی بے حیائی، تھا خود باپ بیٹی کے حق میں قصائی، تھی گھر میں خدا کے بتوں کی خدائی، میرے مصطفیٰ کی سواری جو آئی، گرے منہ کے بل سب صنم ستم عام تھا، عام تھی پچھلے 16 سالوں سے یہ ذہنیتی جلسہ اور مشاعرہ ہم کرتے آ رہے ہیں. یہ اردو کو زندہ رکھنے کے لیے یہ مشاعرے کرنا بھی اردو کو زندہ رکھنے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں. یوم جمہوریہ کے موقع پر یہ مشاعرہ منعقد ہے، لہذا یوم جمہوریت کے تعلق سے کچھ باتیں بزم کے صدر جناب الحاج اللہ بخش خان صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے. میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اللہ بخش خان صاحب صدر بزم غالب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یوم جمہوریہ پر کچھ آپ اپنے احساسات ہم تک رکھیں گے. اللہ بخش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگان احترام اور برادران وطن، آج اس پر مسرت موقع پر یوم جمہوریہ کے موقع پر میں اپنی جانب سے اور بزم غالب کی جانب سے سبھی حضرات کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج ہم 72واں یوم جمہوریہ کا جشن منا رہے ہیں. بھائیو، ہماری زندگی کا ہر لمحہ اور ہر موقع جو قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ عبادت ہے. مسلمانوں کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، دوستی، دشمنی اگر اللہ کے لیے ہو تو یہ بھی ایک عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات اور احکامات اور زندگی کے اصولوں کو امت کو عطا فرمائے ہیں اور بتایا کہ تمہارا ہر کام عبادت بن سکتا ہے بشرط یہ کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت اور احکامات وہی لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ اپنے ملک اور قوم کی خدمت کا فریضہ انجام دیں. ملک اور قوم کی خدمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہو تو وہ بھی ایک عبادت ہے. آنکھیں، دو آنکھیں پر جہنم کی آگ حرام ہے. حدیث میں آتا، حدیث کے مطابق آنکھیں ایسی ہیں جن پر جہنم کی آگ حرام ہے. ایک آنکھیں جو اللہ کے ڈر سے روئے، اللہ اس کی آنکھ پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے تو ان آنسوؤں کو اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خطرہ جو بھی خوف سے نکلے، آنکھ سے نکلے، جہاں بھی نکلے، وہ جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی. معلوم ہوا کہ خوف سے رونا، خوف سے آنکھوں میں آنسو کا آ جانا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. دوسری بات یہ فرمائی کہ اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے جو سرحد اور ملک کی حفاظت کرے. ایک آدمی تہجد کی نماز میں اللہ کے سامنے گڑگڑا رہا ہو، فریاد کر رہا ہے، رو رہا ہے، اور دوسری طرف دوسرا آدمی اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر سرحد کی حفاظت کر رہا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں اس تہجد پڑھنے والے کے مقابلے میں سرحد کی حفاظت کرنے والا ہزاروں درجات سے فضیلت رکھتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کا سبق دیا ہے. آدمی نماز اور عبادت کے ساتھ وطن کی محبت بھی اپنے دل میں پیدا کرے. 26 جنوری کو بھارت میں یوم جمہوریہ کا جشن منایا جاتا ہے. ملک کی اس
किसी मकान का नाम नहीं, मुल्क अल्लाह का, अल्लाह मुल्क समावात वल अर्ज़ वल्लाहुल बैन, जो कुछ भी जमीन और आसमान के अंदर और बाहर सबका मालिक अल्लाह ताला है। भारत के लोगों ने इस मुल्क की तरक्की के लिए सब कुछ कुर्बान किया है। 1857 के गदर से लेकर आज तक इस मुल्क के तामीरी और तरक्की में अहम रोल अदा करते आ रहे हैं, आगे भी इंशाअल्लाह करते रहेंगे। इंशाअल्लाह 5-7 मिनट में सदर मुशायरा हमारे दरमियान होंगे। मौका गनीमत है, बार बार मिलता नहीं है। हमारे दरमियान एक बहुत ही बेहतरीन एक उम्दा शख्सियत तशरीफ रखती है, जो पिछले 40 दहाइयों से सहाफत से वाबस्ता है। हम तो उनके बच्चों के भी बच्चे हैं, मेरी मुराद आप समझ रहे होंगे। हमारे अपने हैं, हमारे महल्ले के हैं और पूरे कर्नाटक की आबूरी सहाफत है। आप जनाब सैयद शरफुद्दीन अशरफी साहब से मैं बहुत ही अदबन दरख्वास्त करूंगा कि इन मुशायरों के तवस्सुल से आप कुछ फरमाएं कि इन मुशायरों का मकसद क्या है और उर्दू की हम खिदमत कैसे कर सकते हैं। अंदाजा नहीं था कि मुझे भी इस तरह का एक मौजूद दिया जाएगा। बिरादरान यहाँ जो भी बैठे हैं वो खुद में एक अंजुमन है, बहुत कुछ अपना असर और रसूख अपने अरबाब में रखते हैं। ऐसे लोगों के रूबरू मैं अगर लफ्ज़ कुशाई करूँ तो शायद ज्यादती भी होगी, फिर भी कोशिश करूँगा। देखिए, अभी बज़्म ग़ालिब के सदर ने ऐलान किया कि ये जो इजलास हो रहा है इसकी मुनासिबत दस्तूर हिंद से, हिंदुस्तान का दस्तूर, आईन, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो आज ही के दिन, आज से 72 कुछ भी नहीं था। सियासतदान आज कहते हैं कि हमने हिंदुस्तान को आजाद करवाया, कांग्रेस कहती है, सीपीआई कहती है, कोई कहती है, लेकिन हकीकत में अगर ये हिंदुस्तान की आजादी मिली, जैसा कि उन्होंने जिक्र किया, कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे उलमाए कराम, हमारे उलमाए कराम अगर ना होते तो हिंदुस्तान को आजाद करने की सोच भी नहीं आती थी। गुलामी ज़हनियत के लोग हैं, ये जो लोग हैं ये गुलामाना ज़हनियत रखते हैं। आज भी देखो ऐसी भक्ति कर रहे हैं, अंधी भक्ति, कि एक शख्स अगर वो रात को दिन पास, उसका नाम शेरवानी है और वो महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल थे। उन्होंने किताब लिखी है, उसमें लिखे हैं और किताब का नाम है पार्टीशन ऑफ इंडिया, रियलिटी एंड लेजेंड। नाज़िम मुशायरा अली जनाब इमरान। बहुत शुक्रिया। इसके बाद जो है हमारे महल्ले के हर दिल अजीज फखरुद्दीन उर्फ फखरू भाई की शालपोशी, हमारे एक दूसरे मेहमान हैं जनाब शेख अकबर साहब जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनकी शालपोशी फरमाएं। इस्तकबाल करते हैं जनाब महबूब पाशा साहब जो कांग्रेस लीडर हैं, आपसे दरख्वास्त है कि आप भी आगे तशरीफ लें। एक और अजीम शख्सियत है जिनको हम अब्दुल रहीम के नाम से जानते हैं, महल्ले के रहने वाले हैं, हर काम में हमारे मेहमान खुसूसी आले जनाब शरफुद्दीन सैयद साहब से गुजारिश है। एक और मेहमान जो हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है, आले जनाब अलहाज कासिम सुहेल अहमद। इसके साथ एक और हमारे मेहमान आले जनाब कारी अफजल रहीमी साहब की, हकीम अदनान हब्बान साहब की शालपोशी फरमाएं। मौलाना अरशद रजा साहब की शालपोशी फरमाएं। अब्दुल वहाब साहब उर्फ अब्दुल भाई, आपकी शालपोशी की जाए। अलहाज बाबा जी की शालपोशी आली जनाब अब्दुल वहाब साहब उर्फ अब्दुल भाई। साहब आपसे अदबन दरख्वास्त है कि तशरीफ ले आए, आपकी शालपोशी की जाए।
मुसलमान सिख और हिंदू बोलता है, मुसलमान सिख और हिंदू बोलता है, सरों पे चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। हज़रात सामईन, आज का ये मजमा हुब्बे उर्दू में जमा है। ये मुशायरा सिर्फ मुशायरा नहीं बल्कि उर्दू की तहजीब और तमद्दुन को नई नस्ल में मुंतकिल करने का जीना है। मेरी मुराद उस शख्स से है जिसने इल्म अदब के हजारों चराग रोशन किए, खुद भी उर्दू ज़बान और अदब का बेहतरीन मुदर्रिस है और आपको सिर्फ से हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है। इस मौके पर मैं आपका तहे दिल से बज़्म गालिब की जानिब से इस्तक़बाल करता हूँ। बज़्म गालिब की बुनियाद 2004 में साबिक़ा कुछ प्रोग्राम में मैं आया हूँ एक मुद्दत से, जैसा इन्होंने कहा ना 16 प्रोग्राम नहीं बल्कि माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर ये प्रोग्राम इनकाद किए जाते हैं। अक्सर प्रोग्राम मैंने देखे कि मुश्तरका ताउन ही से होते हैं। जी बेशक साला वो मुश्तरका ताउन मैंने अक्सर जब अकेडमी में आया तो इन्होंने वहीं से इसका जिक्र खैर किया था। एक सिलसिला जारी है जी जी बेशक, वहाँ से आज तक अब तक उसका अगर नाम मिले तो भी ये लोग खुद कर लेते हैं, इनकी खुसूसियत है और इस अंदाज से कर लेते हैं कि खुद एकेडमी कभी कभी चल के इनके पास आ जाती है। गालिब बज़्म गालिब जो है इस इलाके पर भी गालिब है और माशाल्लाह सबसे बड़ी खुशी की बात है कुछ शोरा उदवा भी यहाँ पर मौजूद हैं, उलमा भी मौजूद हैं और इसका नतीजा ये है कि यहाँ हर साल एक बज़्म मनाना ज़रूरी समझ जाते हैं। जैसे हिंदुस्तान में 26 जनवरी जैसे ऐलान होता है, जैसे पूरी खुशियाँ मनाई जाती हैं, तो इनके यहाँ तो 100% हम एक मुशायरा करना ही है, वो करते भी हैं और एक मोमेंटो का सिलसिला, एजाज़ी सिलसिला ये जारी है। ज़रूरी है कि आज देखिए कि उर्दू हम ख़त्म होती जा रही बोल रहे हैं, ये ख़त्म नहीं है, ये उर्दू ज़िंदा है। ऐसे लोग हर इलाके में ज़िंदा हैं जो उर्दू से जानते भी हैं कि जब जिस मौके पर मैं एक आपके मुशायरे में आपने मुझे शिरकत का मौका दिया उसमें आप तशरीफ़ फरमा थे, ऐलान भी कर दिया था कि जो भी आए सामने कोशिश करे। लेकिन देखता अभी माहौल ये देख रहा हूँ कि एकेडमी शायद मेरे ख्याल में इनके ज़हन से उड़ गई है। अब आज तक पूरे कन्नड़ा अकेडमी से पूरे कन्नड़ा के जितने परा अधिकारा क्या क्या की नाम है उनके पूरे के पूरे हो गए 50 के 50। मैंने कई मरतबा CM से भी मैंने दरख्वास्त की, उनके फर्जन से भी दरख्वास्त की और मैंने मुख्तलिफ लाइन से पहले कहा महीने एक नाम तैयार किए मैंने कि ये लोगों को आप फ़ौरन ये कर दो, मुनासिब है नहीं आपको जो अच्छा लगे। अगर देखिए उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है, हमारे यहाँ हिंदू भी हैं, कुछ आप नाम दिए, इनको भी चाहे तो कर सकते हैं आप, ये सबकी ज़बान है। लेकिन शायद लग रहा है मोहतरम कि कई लोगों ने जो रेस लगाई चेयरमैन की, उनको वो लोग शक में आ गए ये कौन सा पोस्ट है जिसके लोग इतने पीछे पड़े हुए हैं, आखिर इसमें रखा क्या है। शायद वो लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए हैं, इसके लिए काम को पेंडिंग करने का उनके अंदर से तय हो गया है। आज ही आपके सामने वज़ीर आला से जैसे कि उनसे हमने पर्सनल मिलकर कहा, तो हम ऐलान कहते हैं कि आपको जल्द अज जल्द एकेडमी की तश्कील करना चाहिए। और एकेडमी माशाल्लाह हमारे पास प्रोफेसर्स भी हैं, अदीब भी हैं, शायर भी हैं, नौजवान भी हैं, बहुत से काम करना चाहते हैं, इनको जल्द अज जल्द आप करें, वरना आपका 1.5 साल निकल गया है, अभी चंद दिन आपके और बचे हुए हैं, इसमें एकेडमी हो जाए तो बहुत अच्छा है। यहाँ खास अदीबों को बहुत नुकसान हो रहा है और काफ़ी कोविड के मौके को कैसा इक़दाम करना चाहिए इस सिलसिले अगर उर्दूदान एक तबका जाकर मिलकर CM के साथ मिले तो मुनासिब रहेगा, वज़ीर आला से मिलकर बात करें तो ये भी अच्छा रहेगा कि क्यों इसकी तश्कील नहीं हो रही है, तश्कील होना चाहिए। आपके सारे अकेडमीज नहीं बल्कि जितने नियम मंडली जितने हैं, जितने आप बनाना था सब बना लिए, इसको क्यों बाकी रखे हुए हैं, आखिर ये भी बाकी रखे हुए हैं, हज कमेटी भी बाकी रखे हुए हैं। ये बदकिस्मती की बात है, ये जमहूरी मुल्क है, आज ये यौम जमहूरिया है, हमको आज जमहूरियत का एक पहला हमारी ज़बान से नहीं मिला तो दूसरे से क्या मिल सकता है। एक हमारी ज़बान से नहीं मिल रहा है तो समझिए कि खुद देख सकते हैं कि हुकूमत एक जमहूरी दिन ऐलान तो भी कम अज़ कम कर सकती थी कि उर्दू के साथ हम इंसाफ कर रहे हैं। जब तक एकेडमी की तश्कील नहीं होती
अब फी वक्त अफसरान के हाथ में है, कैसे कि काम वो लोग कर रहे हैं। एकेडमी की तश्कील हो जाने के बाद मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें काबू में आ जाएंगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बज़्म गालिब की शुरुआत 2004 26 जनवरी से हुई थी और हर 2 माह में किसी शायर, अदीब या सहाफ़ी को उनके फ़न और शख्सियत पर अवार्ड से नवाजा जाता था। लेकिन कुछ सालों से यह सिलसिला कुछ सही तरीक़े से नहीं चल रहा है। उसे हम वजह यह है कि वजह इसके वजूहात कई हैं, अभी वो मैं बताना नहीं चाहता। अभी ये तकरीबन 1 साल से लॉकडाउन भी चल रहा है, कहीं भी महफिलें नहीं हो पा रही थी। फिर ज़िम्मेदार ने बज़्म गालिब ने 1 महीना पहले ये तय किया कि ये 26 जनवरी का जो मुशायरा और तहनीती जलसा जो मुनक़्क़द करते हैं उसे जारी रखें, इस रिवायत को जारी रखें और यहाँ इस इलाक़े में उर्दू की एक शमा जलती रहे। देखिए, चेयरमैन के ना होने की वजह से रजिस्ट्रार साहिबा हैं, उनसे हमने मुलाकात की, वादा किए हैं वो, लेकिन जिस तरीक़े से पिछली हुकूमतों से हमें फ़ंड मिलता था, अब की बार जो है बहुत कम फ़ंड जो है सैंक्शन हुआ है। कितना हुआ यह भी मालूम नहीं, लेकिन होगा। दरअसल इस बज़्म को बज़्म गालिब जो है ऐसे शख्सियतों को खो चुकी है इस कोरोना के माहौल में। इसके सरपरस्त अलहाज अल्लाह बख्श साहब जो हमारे वालिद मोहतरम हैं थे, शुक्रुल्लाह, वो भी हमारे बीच नहीं हैं। और इस बज़्म के सदर जनाब महबूब पाशा उर्फ टिम्बर बाबू जो सदर थे, वो भी अब हमारे बीच में नहीं रहे। इस वजह से जो बड़ों ने ऐसा हुआ है, तो ये बज़्म कहीं ऐसा ना हो कि इस बज़्म कमज़ोर पड़ जाए। इस वजह से अल्लाह ने हमें इस तरफ तौफीक दी कि चलो इसको कुछ करते हैं, क्योंकि उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, हमारे बच्चों में भी उर्दू आ सके, मोहल्ले से उर्दू का ख़ात्मा ना हो, इंशाअल्लाह कभी उर्दू बरक़रार रहे। बस यही मकसद से हम लोगों ने आए हैं। बस अल्लाह हम लोगों को हिम्मत दे कि ज़रा तमाम सिर्फ़ उर्दू स्कूलों की निगरानी हो। मेरा मकसद ख़ासकर सिर्फ वही है कि इस इलाक़े में माशाल्लाह बहुत से उर्दू स्कूल्स हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ हो, उसमें जाके हम लोगों को उसकी देखभाल करें, ताकि वह कहाँ कैसी तालीम हो रही है, वहाँ पे क्या हो रहा है। 5 स्कूलें हैं अभी फ़िलवक्त, बड़ी स्कूलें इसमें 3 हैं, बहुत बड़ी स्कूलें हैं माशाल्लाह, बच्चों की तादाद भी इसमें काफ़ी बड़ी है। लेकिन तालीम का जब जायज़ा लेने हम जाते हैं तो अफसोस है इस बात का कि उस पर हमें इत्मीनान बख्श नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी तालीम जो है कैसी है हम खुद जानते हैं। बस इसी वजह से हम लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इंशाअल्लाह हम मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला अल्लाह बख्श। सदर हैं आप? जी, मैं बज़्म का सदर हूँ, अभी नया बना हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह हिम्मत दे के इसको आगे ले जा सके। लेकिन यहाँ ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह कि ज़ोरों शोर से ही हुए हैं अभी तक जितने प्रोग्राम हुए हैं बज़्म गालिब के, और दूसरे प्रोग्रामों का तो मुझे ज़्यादा अंदाज़ा है कि आप जो फरमा रहे हैं दुरुस्त है, लेकिन मुहिब उर्दू की आज भी कमी नहीं है। बज़्म गालिब की एक खुसूसियत ये भी रही है कि हम एक तरफ उर्दू का रोना रोते हैं, लेकिन हमेशा उर्दू अकेडमी ने ताउन किया है, ताउन होता आ रहा है, अलबत्ता इस मरतबा ना होने के बराबर है। फिर भी हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह आइंदा जो है अकेडमी ताउन करेगी और हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ज़िम्मेदारान की एक कोशिश ये भी है कि हमारे इस महल्ले के हद तक हम एक उर्दू के लिए एक छोटा सा हाल बना लें, और उसके लिए हमने दरमियान में कोशिश की थी लेकिन हम नाकाम रहे। आप दुआ भी फरमाएं और हम कोशिश में लगे हुए हैं। बज़्म के सदर जो हैं और ज़िम्मेदारान जो हैं इसके लिए बड़े फ़िक्रमंद हैं। नहीं, यहाँ 3 स्कूल हैं और तीनों में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं और काम चल रहा है, और कई मदरसे हैं और उर्दू की यहाँ पर बहुत अच्छी खपत है। आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे इस इलाके में 300 से 350 उर्दू अखबार रोज़ाना फ़रोख्त होते हैं। ये उर्दू पढ़ने वालों ही की देन है,
मदरसे अलग हैं, मदरसों की तादाद अलग है, मकतबों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन उर्दू पढ़ने वाले काफ़ी हैं। और ये एक वाहिद इलाका ऐसा है कि जिसमें जो अखबार कभी कभी छपता है वो भी बिकता है हमारे यहाँ। कमेट की तश्कील के ताल्लुक़ से कई मुरासले हमने अखबारात में लिखे हैं और अकेडमी को भी हमने एक मरतबा याददाश्त पेश की थी कि इस पर तवज्जो दी जाए। पहले हम लोगों ने ऐसा कोई मंसूबा नहीं रखा। जहाँ तक अखबारात के ताल्लुक़ से अखबारात में हमारे मुरासले शाये हुए हैं। तो क्या पहल हुई, उस पर क्या रिएक्ट हुआ? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। लॉकडाउन की वजह से सारे काम बंद हैं। ये मुशायरे शुरू हो गए, यही बहुत बड़ी इस वक्त काफ़ी है और उसी से हम लोग खुश हैं।